ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا اپنے شہید والد کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، واضح کر دیا وہ رہیں یا نہ رہیں دنیا بھر میں موجود آزاد لوگ شہید رہبر اعلیٰ کے قتل کا بدلہ لینے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ایرانی قوم انتقام چاہتی ہے، مجرم بستر پر آرام دہ موت کی خواہش کے لیے اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ ناحق بہایا گیا شہداء کا خون ایرانی قوم کو نئی زندگی دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک پیغام، شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت تاریخی اور دشمن کے لیے دھچکا قرار دے دی۔ ایران نے قتل کی کوشش بھی کی تو 1000 میزائلز برسنے کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد مزید ہزاروں میزائلز بھی ایران کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوابی دھمکی، واضح کر دیا کہ فوج کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، ان کے ممکنہ قتل کی صورت میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران ڈیل یورینیم حوالگی اور آبنۂ ہرمز کی سیکیورٹی سے مشروط کر دی۔ تباہ شدہ یورینیم نہ ملی تو ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، سینئر امریکی حکام نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے ایران کو آبنۂ ہرمز میں حملے بند کرنے اور ٹول ٹیکس وصول نہ کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ عوامی سطح پر اعلان بھی کرنے کا مطالبہ۔ ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق امریکی حکام نے ایسا نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ ایران نے جوہری تنصیبات کی مرمت اور بحالی کے کام کا آغاز کر دیا، CNN کا دعویٰ۔ امریکن ٹی وی نے نئی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ تہران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی معاہدے کے باوجود بعض متاثرہ مقامات پر تعمیراتی سرگرمیاں جاری کی تھیں۔ تہران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی معاہدے کے باوجود بعض متاثرہ مقامات پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کی۔ رپورٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بننے والی تنصیبات کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ ایران کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام، ایران اب بھی اسلام آباد MOU پر قائم ہے، معاہدے پر عمل درآمد صرف دونوں طرف سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر پیغام، عباس عراقچی عمان پہنچ گئے، آبنۂ ہرمز سے متعلق مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ایران نے امریکی حملوں میں تباہ ہونے والا ہم تہران مشہد ریلوے پل بحال کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پل کو حملوں کے بعد 15 گھنٹوں کے ریکارڈ وقت میں بحال کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی مشرق وسطی تنازع پر تمام فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ باور کرایا علاقائی امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ واضح کیا خطے میں امن اور استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مسلسل رابطے، مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی میں اضافے سے امن اور استحکام کی کاوشوں کو نقصان پہنچے گا، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص امریکہ ایران کے درمیان مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا خطے میں بحری سرگرمیوں کے بھارتی سرپرستی میں پاکستان کا امن تباہ کرنے والے خارجی دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن شابان کے تحت تابڑ توڑ کارروائیاں، 24 گھنٹوں میں مزید 9 دہشت گرد ہلاک۔ 5 جولائی سے اب تک مارے گئے خارجی دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 102 ہو گئی۔ پاک وطن کے بہادر بیٹے دشوار گزار پہاڑی راستوں پر امن دشمنوں کے تعاقب میں سرگرداں، خارجی کے خفیہ ٹھکانے اب محفوظ نہیں رہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ بلوچستان میں بڑی انتظامی تبدیلی، قلات ڈویژن ختم، خزدار اور لسبیلا ڈویژن کا قیام۔ کوئٹہ بھی 2 حصوں میں تقسیم، صوبائی حکومت نے نئی انتظامی تقسیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اقدام کا مقصد عوامی خدمات اور ترقیاتی منصوبے مؤثر بنانا قرار۔
पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई। आलमी मंडी में कीमतें कम हो गईं, यहाँ बढ़ा दी गईं। आलमी मंडी में कीमतें कम होने का फायदा मुंतकिल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। लेवी में 9 रुपए इजाफे से पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 13 रुपए 80 पैसे बढ़ा दिए गए, कीमत 323 रुपए 71 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत 11 रुपए 19 पैसे इजाफे के बाद 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर। जेट फ्यूल 13 रुपए 23 पैसे और लाइव डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपए 74 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल है ना, वो कहता है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हमारे यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आवाम को हम रिलीफ नहीं दे सकते। और पता नहीं थोड़ी जंग ऐसे आसार आ जाते हैं कि अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो रातों रात पूछते भी नहीं। मुल्क भर के पेट्रोल पंप 1.5 से 2 रुपए इजाफी वसूली में मसरूफ। ओगरा समेत मुतालिका इदारे खामोश, शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। कार्गो एयरलाइन के 2 एयरवेज की फ्लाइट को हादसे की तहकीकात जारी। हादसे से कबल अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की। फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से समुंदर की जानिब गिरा। बुखैरा अरब में हादसे के बाद अमले के 5 अराकीन लापता हैं। एमकेएम पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तिलाफात सामने आने लगे। मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार करार दे दिया। वो इतनी बड़ी शख्सियत नहीं कि उनके खिलाफ बगावत हो। वफाकी वज़ीर सेहत का अपने ही पार्टी लीडर से नाराजगी का इजहार। पार्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए इलेक्शन जीतने की उम्मीद का इजहार। ईरान में तक़सीम का प्रोपेगेंडा झूठा निकला। ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया में मजाक बना दिया। आलमी निज़ाम चलाने वालों को शिकस्त का क्रेडिट फ़लस्तीनियों की इस्तकामत को जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त खोरदा करार दे दिया। मजलिस शूरा के इजलास से खिताब में अफ़गान हुकूमत से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। पंजाब भर में बंजर जमीन सरसब्ज जंगलात में तब्दील। 4 करोड़ दरख्त 41,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर शजरकारी और दरख्तों की 3,000 कतारें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। 4 करोड़ दरख्त सब्ज इनकलाब का महज आगाज करार। पंजाब आने वाले दिनों में जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा कहलाएगा। मरियम नवाज शरीफ का आज़म। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत गंदम बोर्ड का इजलास। हुकूमत ने गंदम की पैदावार का हदफ हासिल कर लिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा साल पैदावार 13,60,000 टन जायद रहने का तखमीना। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मानसून, सैलाब और हीट वेव्स जैसे खतरात के खिलाफ वफाक और सिंध के दरमियान मौसर हम आहंगी खुश आइंद करार दी। वाज़ेह किया कि जदीद टेक्नोलॉजी हकीकी वक्त के मौसमियाती, आबी और जोग्राफियाई डेटा की मदद से खतरात की बर वक्त निशानदही मुमकिन होगी। मेरे बच्चे को तो पैसा कमाने के लिए इसने मारा है, क्योंकि ये कोई डाक बैग वो उसके अंदर मुलव्वस था चलाने के लिए। इसने मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की 1 दफ़ा 2 दफ़ा। ये तो सुनने में आ रहा है ये तो बोल्डक मार्केट में इधर उधर डॉलर कैश करवाने के लिए जाता था। कराची के इलाक़ाई मार्केट में ज़्यादती के बाद कातिल शाह सलाफ अली के वालिद का मुल्ज़िम पर वीडियो डार्क वेब पर अपलोड करने का इल्ज़ाम। कहा मुल्ज़िम हमजा ने उनके बच्चे को टारगेट किया था। वो बोल्टन मार्केट से डॉलर भी तब्दील करवाता रहा। लाहौर के इलाके काहना में घरेलू झगड़े पर शौहर का अहलिया पर तशद्दुद। राहगीर तमाशाई बन गए, कोई रोकने वाला आगे नहीं आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, एफआईआर दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। राजनपुर के इलाके दाजल में 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर मुलजिम तेज धार आले से जख्मी करके फरार। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके नाज़माबाद 3 नंबर पर 2 रोज कबल खातून को हिरासत करने की सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
लाहौर में मुबैना तशद्दुद से 12 साल घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक, वालिद का मालिकान पर बेटी को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गई, 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए, कई शदीद जख्मी पेशावर रवाना, पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज, तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। सक्खर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मुश्तरका कार्रवाई में गंदम की 25,000 बोरियां बरामद कर ली। लाहौर में ट्रैफिक हादसात में मुलव्विस 68 ड्राइवर्स के लाइसेंसेस मुअत्तल, सीटीओ लाहौर के मुताबिक मुअत्तल लाइसेंस होल्डर्स को फिर से ड्राइविंग करने का पर्चे का सामना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सियालकोट के शहरियों के लिए जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात का इंतजार खत्म, माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसों का आजमाइशी सर्विस का कामयाबी से आगाज कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाजायज कटौतियों का इंकशाफ, FIA साहिवाल ने कटौती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, सियालकोट और गुजरांवाला के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मानसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 1400 से जायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका के रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए मुंतखब, पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंतखाब की तादाद में भारतीय डॉक्टर से आगे निकल गए। अफगान वज़ीर ज़राअत नई दिल्ली पहुंचकर मोदी की ज़बान बोलने लगे। मौलवी अताउल्लाह उमरी ने अफगानिस्तान और भारत की DNA को एक करार दे दिया। उमरी ने कहा, उन्हें एहसास नहीं हुआ वो किसी गैर मुल्क में है, यूं लगा जैसे है अपने ही मुल्क में हूँ। अफगान तालिबान रजीम अब भी गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफगान तालिबान होस्टेज टेकिंग पॉलिसी के तहत तमाम बेकसूर अमरीकी शहरियों को फौरी रिहा करे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा एलिजाबेथ स्टिंकी ने अफगानिस्तान में खवातीन के इंसानी हकूक की सूरत हाल को इंतहाई खौफनाक करार दे दिया। खवातीन और मासूम बच्चियों के हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां फौरी बंद करने का मुतालबा। गाजा पर सेहूनी हमले जारी, 48 घंटों के दौरान 7 लाशें अस्पताल लाई गई। 28 अफराद जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के हाथों जारी फलस्तीनियों की नस्लकुशी में अमवात की तादाद 73,221 हो गई। 1,73,643 जख्मी। जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले रुक नहीं सके। जनूबी लेबनान में 2 मकामात पर ड्रोन हमले। अमेरिका ने लेबनान इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद में मदद के लिए फौजी वफ्द बैरूत भेज दिया। वियतनाम में भारतीय सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 15 अफराद हलाक। कश्ती एक जजीरे के सैर पर गई थी। बॉस्निया के इलाके सर्ब्रेनिका में सर्बों के हाथों बदतरीन कत्ल को 31 बरस मुकम्मल। 14 की खबरों पर फातिहा ख्वानी। बॉस्नियाई अवाम के जख्म फिर से ताज़ा। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत महफूज करार दिए गए इलाके में 8,000 से ज़ायद बॉस्नियाती मर्दों को धोखे से शहीद किया गया। 31 साल गुजरने के बावजूद 1,000 से ज़ायद मुतासरीन की बाक़ियात ताहाल मिल नहीं सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडर्मिट मुस्ताफी। अपना इस्तीफा PCB को इरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने निजी मसरूफियात की बिना पर इस्तीफा दिया। PCB ने दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए फील्डिंग कोच की तलाश शुरू कर दी।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के एक हफ्ते के बाद 25 साला जनूबी अफ्रीकी फुटबॉलर जेटी एडम्स चल बसे। मौत की फौरी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। जैरन एडम्स ने वर्ल्ड कप 2026 में जनूबी अफ्रीका की तारीखी मुहिम में अहम किरदार अदा किया। ग्रुप मरहले के तमाम मैचेस खेले। जनूबी अफ्रीकी टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही। सेरेबियन स्टार नोवाक जोकोविच का विंबलडन टाइटल फिर जीतने का ख्वाब टूट गया। सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के यांग सिनर स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। बेमिसाल गज़लें लाजवाल गीत, पाकिस्तान के मारूफ शायर और मौसीकार क़तील सिपाही को आज याद करने का दिन।